All right. Hello everyone. I'm audible. Yes, sir. Okay. ठीक है. I hope my voice is recognizable. I hope you guys know me. And yes, so we are again going to study together. Last time, what were we studying, and we left it in between. What was the subject? I guess it was biology. Yes, sir. It was by. Yeah. I guess we didn't even complete it. Yeah. Okay. Okay. No worries. We'll try this time that we complete all of this. We'll make sure we complete it all. So, what is the subject that we are going to study? It's chemistry today. Okay. Yes. So, we'll be starting off with chemistry today, and you guys would have been already been informed about it. And I guess इसके पहले भी chemistry मैंने ही करवाया था, if I'm not wrong. Yes, sir. पहले हुआ था chemistry. हाँ. So, obviously, it is going to be the same thing again. We'll be studying the same chemistry. Obviously, nothing different or nothing changes over here. Uh, but yeah, I remember Umkar was there, and you were there earlier as well. Manasvi and Rutvi are, I guess, new people, but never mind, we'll be studying again. And I hope everyone's attempt is is anyone having the upcoming attempt of September, or like everyone's attempt is after 1 or 2 years? So mine is in September. This coming September? Yeah. Okay, so yours is like, okay, अभी है फिलहाल. ठीक है, चलो. ठीक है, we'll start with the lectures. ठीक है. Uh, so yeah, I'll just give you a brief introduction about myself again, as a few of you would be already aware of it or may not be aware of it. So my name is Bhuvnesh Kamble. Uh, I'm All India rank 194 in UPSC CUPF EC examination 2024. Uh, so as far as my knowledge is concerned with respect to defense and all, so you can see over here I've cleared the CDS 4 times, AFCAT I've appeared 5 times. I also appeared for the Indian Coast Guard Common Admission Test 1 time, and I have appeared for 6 certain SSBs of various forces, Army, Navy, Air Force. And yeah, basically that is my basically resume. And I've appeared for various SSBs and been in this defense examination for quite a long time now. You can see this is my AFSB Mysore picture. Yeah, I've appeared for the Indian Air Force interview in 2022. Yeah, again the same picture you can see I'm here. This is Indian Air Force Mysuru, the board. This is like the SSB or gate. I guess I have shown this or maybe I'm not. But yeah, you can just see this again. A bit of motivating pictures. And again, this is 17 SSB Bangalore. So when you go for clear your ND examination and go for SSB, so this is very good for Indian Army. So mostly you'll get centers once you clear the NDA. You'll get a center over here. If you have opted for Indian Air Force, then yes, you also have the option of going to this Mysore Center, which is Air Force Selection Board. Apart from this, then again, this is 17 SSB Bangalore. Again, our picture you can see chest number 16. I'm over here. And yes, I'll just explain about all of this process a bit as well, what actually goes around with respect to SSB and everything. Then again, you can see Indian Coast Guard, SSB. This is Indian Coast Guard picture. The preparation day is a little bit, you can see. And then this finally, this picture of me standing in front of the VPSC board that I've appeared for, and I've recently cleared this examination. So yeah, this whole lecture series will be basically about chemistry, and more or less more than chemistry, we'll be understanding basically what goes around with respect to your preparation phase. I know you guys will be facing a lot of challenges during your preparation phase as well, so we'll be shortly discussing about the same as well. And yes, so I'm here with you for quite a bit long time now. We'll discuss about various aspects of your lecture series and everything. The very first chapter that we'll be discussing today is going to be this acid, base, and salt. This is the exact chapter that we started off last time as well. Yes, today as well we'll be starting off with the same chapter.
पिछली बार भी पढ़ा हमने एसिड बेस सॉल्ट. आई होप you guys remember a little bit of it. But yes, today again we'll be starting off with the same chapter. So what do you basically understand by acid? Can anyone explain? What do you mean by acid? What do you understand by the word acid? Anyone? No one. कुछ लोगों ने तो पढ़ा है. Few of them know. What do you mean by So acid? acid Hmm. is a chemical substance that donates hydrogen ions when it dissolved in water. Okay, so yeah, it donates, dissociates into what? That is H plus ions हम बोलते हैं. तो एसिड वो चीज है जिसमें क्या होता है, हमने ये पढ़ा है. उसमें होता है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पानी में डाला तभी वो डिसोशिएट करता है. हाँ, उस टाइम पे भी करता है, बट इवन इन एनी अदर मीडियम. ठीक है, फूड वुड में भी वो क्या डिसोशिएट करता है, दैट इज दिस H प्लस आयन. व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय द बेसिस? तो इसमें कौन सा आयन होता है बेस में? It has OH negative ions. या तो इट इज बेसिकली OH माइनस. तो बोलते हैं OH माइनस आयन आर बेसिकली डिसोशिएटेड बाय दिस. सॉल्ट में क्या होता है वैसे? सॉल्ट में क्या होता है? कोई आयन होते हैं सॉल्ट में, या इट इज कम्प्लीटली न्यूट्रल? इट्स कम्प्लीटली अ न्यूट्रल They are थिंग. ठीक neutral. है, यहाँ पे या दे आर न्यूट्रल. एक्चुअली सॉल्ट बनता है कि किन दोनों चीजों से? तो ये दो चीजें विच इज एसिड एंड बेसिस. ये दो चीजों से बेसिकली सॉल्ट बनता है. ठीक है. आई रियली वांट यू गाइस टू बेसिकली पे अटेंशन टू दिस बिकॉज़ वी विल बी सॉल्विंग सर्टेन पीवाईक्यूज एज वेल. तो क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें मिलेंगे कहाँ से? तो दैट इज थ्रू दिस attention that you basically play in the classroom. ठीक है. Now let's discuss about the taste of these two substances. What is the taste of acid? How does it taste? Have you ever tasted any acid? Chemistry lab में, schools में? So it is sour in taste. Yeah. Sorry, it is sour Sour taste, in taste. right? हाँ, तो लिखा. So it is sour in taste. ठीक है, थोड़ा सा खट्टा होता है. कभी तो तुमने देखा होगा, मतलब इन स्कूल्स whenever you would have been taken to the chemistry lab, और वहाँ पे एसिड दिया तो जाता है, बट हाँ ठीक है, एसिड में भी दो टाइप ऑफ एसिड्स होते हैं. इफ यू रिमेम्बर व्हाट आई टोल्ड यू. ठीक है. जब स्कूल में जो एसिड दिया जाता था वो कौन सा टाइप का एसिड होता था? कभी ये देखा है तुमने? कभी एसिड के सामने लिखा रहता है DIL? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब Diluted. ये है क्या? इसका मतलब ये है क्या, दिल? नो, इट इज डाइल्यूटेड बोला जाता है इसको. इट मींस व्हाट? डाइल्यूटेड. व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटेड? डाइल्यूटेड में क्या किया जाता है बेसिकली? Mixed into water. हाँ, सो बेसिकली एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर. और ये क्यों किया जाता है? वाटर के साथ क्यों मिक्स किया जा रहा है उसको? व्हाट इज द रीजन लाइक एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर? सो दैट उसके अंदर के किस चीज के कंसंट्रेशन कम हो जाए? H प्लस आयंस के. ठीक है, जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है उतना ज्यादा एसिड क्या है, हानिकारक होता है. और जितने कम एसिड एसिड के अंदर H प्लस आयन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लेस बेसिकली हार्मफुल होता है. एंड दैट इज द रीजन वाई तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में तुम्हें ये डाइल्यूटेड HCl दिया जाता है. फिर डाइल्यूटेड जो भी एसिड होगा, H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड्स डाइल्यूटेड फॉर्म में दिए जाते हैं सो दैट इट इज लेस हार्मफुल. वरना इससे जो भयंकर वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है? डाइल्यूटेड का ऑपोजिट क्या होता है? Concentrated. यस. तो तुमने कभी कभी देखा रहेगा CONC ऐसा लिखा होगा कहीं ना कहीं. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोलता है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड. सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ एसिड आर एसिड जिसमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एंड बेसिकली दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, ये वीक एसिड बन जाता है इसके थ्रू, एंड कॉन्सेंट्रेटेड के थ्रू स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है टेक्निकली. ठीक है, तो ये चीज पता होगी. तो यस, whenever you basically taste acid it basically tastes sour. ठीक है. एंड सेम बेसिस का टेस्ट कैसे होगा फिर? Bitter. सॉरी. Bitter in taste. ओके, यस, तो इट It's इज गोइंग bitter टू बी in बिटर taste. इन टेस्ट. यस, बिटर. ठीक है, थोड़ा सा कड़वा होता है ये टेस्ट में. ठीक है. बेस का टेस्ट अगर जानना है तो बेसिकली कभी साबुन गलती से खाया भी होगा तो जैसे वो थोड़ा सा सूपी सूपी सा टेस्ट होता है, टेक्सचर भी उसी तरीके से थोड़ा होता है, सो दैट इज अगेन बेस. ठीक है.
So that is basically how you basically define acids and bases. There is no as such definition, but that is how you basically identify an acid and base. But अगर तुम हम हमारे सामने अगर दो टेस्ट ट्यूब्स रखे हैं और उसमें कुछ कुछ लिक्विड रखा है, या देयर इज लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड इन दिस टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है, अब बोला जाएगा और दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स है बेसिकली। सो हाउ डू यू बेसिकली आइडेंटिफाई कि कौन से टेस्ट ट्यूब में बेसिकली क्या है? लेट्स से देयर इज टेस्ट ट्यूब ए एंड देयर इज टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब में कौन सा लिक्विड है, कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है और कौन से टेस्ट ट्यूब में बेस है, ये चीज हम कैसे पता करते हैं? व्हाट वाज द थिंग दैट वी बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई दिस? लिटमस, ठीक है। वी हैव यूज लिटमस टेस्ट, राइट, वी हैव डन लिटमस टेस्ट। हमने यहाँ पे कुछ उस टाइम पे भी हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े थे टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेस, ठीक है। एसिड में क्या होता है, यहाँ पे हमने वो शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ा था, वी स्टडीड ABR, राइट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड BRB। व्हाट डज दैट मीन? दैट बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यही सेट ऑफ टू टेस्ट ट्यूब्स ये दोनों लिक्विड ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स है एंड वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई, तो हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर लेंगे, ठीक है। ये लिटमस का एक स्ट्रिप होगा, ठीक है। वो भी हम कौन से कलर का लेंगे, तो ये लेंगे ब्लू कलर का, ठीक है। इट विल बी बेसिकली ब्लू इन कलर। तो ये ब्लू स्ट्रिप को जब हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, इफ द ब्लू स्ट्रिप इज बेसिकली पुट इनटू एसिड, तो इसका कलर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? दिस ब्लू कलर चेंजेस टू रेड, दैट इज व्हाट वी बेसिकली मीन टू से, दैट इज इन एसिड ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अनदर स्ट्रिप ऑफ अ लिटमस जो कि रेड कलर की स्ट्रिप है, एंड इफ आई पुट इट इन बेस, तो रेड कलर की स्ट्रिप कौन से कलर में चेंज हो जाएगी? दैट इट विल बी चेंजिंग इन ब्लू कलर, ठीक है। बट इफ आई टेक अ रेड कलर स्ट्रिप एंड पुट इट इन एसिड, व्हाट कलर इट चेंजेस टू? A red litmus strip, when it is put into this acid, what color does it change to? What color does this red changes to in acid? वो रेड का रेड ही रहेगा, राइट, वो रेड का रेड ही रहेगा। एंड इफ द सेम थिंग इफ आई से दैट इफ अ ब्लू स्ट्रिप आई पुट इट इन अ बेस, ठीक है, इफ अ ब्लू स्ट्रिप आई पुट इट इन अ बेस, so what color it changes to? It remains ब्लू का ब्लू है, ठीक है, it remains ब्लू का ब्लू है। But if I put a red strip into blue, oh sorry, base, if I'm putting a red strip into base, then what does it change to? जैसे यहाँ पे लिखा है, it changes to blue, ठीक है। रेड का ब्लू होता है बेस में एंड एसिड में ब्लू का रेड होता है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दी शॉर्ट फॉर्म, जितना पता होगा तो बाकी सब तो सिंपल है, ठीक है। दैट इज बेसिकली हाउ वी आइडेंटिफाई whether a solution is a liquid or a sorry acid or a base, ठीक है। And for that matter what test we do is basically this litmus test we do, ठीक है। ठीक है, write down about acid, just give a heading first of all, acid, base and salt, give a heading acid, base and salt, ठीक है। And just write down, first of all write down acid, write down first of all acid, write down acid are sour in taste, यहाँ पे लिखा है sour, acids are sour in taste, acids are sour in taste and produces H plus ions, यहाँ पे लिखा है, and produces H plus ions, and produces H plus ions, acids are sour in taste and produces H plus ions, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, न्यू स्टेटमेंट राइट डाउन, bases are bitter in taste, यहाँ पे लिखा है bitter, bases are bitter in taste and produce OH minus ions, and produce OH minus ions, and produce
OH minus ions. ठीक है. Now write down one thing. Give a heading. Write down natural indicators. Write down natural indicators. जैसे यहाँ पे लिखा ही है. Write down natural indicators. Give a heading. Natural indicators. Write down number one. Number one. Litmus. Number one. Litmus. लिटमस के बारे में थोड़ा लिखेंगे हम. राइट डाउन लिटमस. राइट डाउन डैश करके. इट इज अ पर्पल डाई. इट इज अ पर्पल डाई. स्क्रीन पे देख सकते हो लिखा है. इट इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा. यहाँ तक लिखा है. It is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. और ये यूपीएससी ने एनडीए के एग्जाम में एक बार पूछा भी है. दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये वाला लिख लो. क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें. यू विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन प्लस प्लीज रिमेंबर दिस. एट द एंड ऑफ द लेक्चर विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस. तो ये आंसर देना है तुम्हें उस टाइम पे. ठीक है. तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है. दैट इज बेसिकली लिटमस. ठीक है. उसके आगे प्लीज इसका एक चीज याद रखना. ये जब नॉर्मल फॉर्म में होता है, जब इसके अंदर एसिड भी नहीं डाला जाता है, फिर बेस भी नहीं डाला जाता है, तो ये कौन से कलर का होता है? तो ये पर्पल कलर का होता है. इफ आई एम सपोज टू शो यू, आई जस्ट शो यू हाउ लिटमस बेसिकली लुक्स. एक मिनट. ये देखो, ये लिटमस सोल्यूशन जो होता है ना, दिस आर बेसिकली लिटमस पेपर्स. जो शो यू लिटमस सोल्यूशन जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी. ठीक है. ये लिटमस सोल्यूशन कुछ ऐसे दिखता है. इट इज पर्पल इन कलर एक्चुअली. ठीक है. बट इसमें जब एसिड या बेस जो भी डाला जाता है तो उस हिसाब से ये कलर बेसिकली बदलता है. अब दूसरी चीज यहाँ पे हम जो देखते हैं, हमने जो इसके पहले जो स्ट्रिप्स की बात हम कर रहे थे, तो ये स्ट्रिप्स कुछ ऐसे दिखते हैं. सी इफ यू सी, ब्लू लिटमस पेपर है. ऐसे कुछ ब्लू लिटमस पेपर है यहाँ पे. ठीक है. ये ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है? जब इसको एसिड में डाल दिया जाएगा तो ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड. और बेस में जब रेड लिटमस पेपर डाला जाएगा तो ब्लू. अगर मैं बोलता हूँ कि अगर एसिड में भी मैंने अगर ये रेड लिटमस पेपर डाला तो उसका कलर क्या रहेगा? रेड का रेड ही रहेगा. बिकॉज अल्टीमेटली एसिड में कलर रेडी हो जाएगा. दैट इज व्हाट इट बेसिकली इंडिकेट्स अस. एंड बेस में कोई भी कलर ब्लू हो जाएगा. ठीक है. अब इसको याद रखने की कोशिश कैसे करना है? एसिड इज समथिंग विच इज वेरी डेंजरस. तो डेंजर का कलर क्या होता है? रेड. तो याद रखना, एसिड में तुम ब्लू डालो या रेड डालो, उसका आखिरी कलर क्या होगा? रेड ही रहेगा. एंड बेस में बी है, इसका बी से स्टार्ट हो रहा है तो ब्लू ही रहेगा. ऐसे याद रखना. एंड वंस यू नो कि एसिड में रेड ही रहेगा तो बेस में क्या होना चाहिए? तो ब्लू ही रहना चाहिए. दैट इज हाउ यू बेसिकली रिमेंबर दिस थिंग. तो बेस में तो ब्लू लिटमस पेपर डालो या रेड लिटमस पेपर डालो. ठीक है. दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे याद रखना. ये जो मैं तुम्हें यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रहा था, ठीक है, द सोल्यूशन दैट वाज शोइंग यू ऑफ दिस लिटमस बेसिकली पर्पल वाला, ये नेचुरली हमें उस फ्लावर से मिलता है जो कि हमने देखा था, हमने पढ़ा है राइट. लाइकेन से मिलता है. लाइकेन वाज द थिंग बेसिकली जिसके बेसिस पे यहाँ पे देखो ऐसे होता है. ठीक है. तो ये सोल्यूशन नेचुरली मिलता है. ठीक है. अब उसके अंदर तुमने एसिड डाला तो कलर कैसे हो जाता है? पर्पल का कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाता है. एंड वही पर्पल का कलर थोड़ा लाइट पिंकिश हो जाता है बेस में. ठीक है. यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. यहाँ पे हमने जो ये स्ट्रिप्स की बात की है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप्स है ये इसमें बनाए गए बेसिकली. ठीक है. इट हैज बीन मेड इन व्हाट दैट इज केमिस्ट्री के लैब्स में ना, ये स्ट्रिप्स को ऐसे बनाया गया है प्रॉपरली. इसके अंदर दिस लिटमस की प्रॉपर्टीज डाली है. सोल्यूशन को सॉलिडिफाई करके उसका एक सॉलिड ऐसे पेपर का एक स्ट्रिप बनाया गया. दैट इज वाई इट लुक्स इन अ सर्टन वे. ठीक है. तो ये साइंटिस्ट लोगों ने बाद में मिलकर ये सब चीजें बनाई है सो दैट ये हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेटर है, क्योंकि ये सोल्यूशन लेके नहीं घूम सकते ना हर जगह. वी कैन नॉट बेसिकली टेक आवर सॉल्यूशंस एवरीवेयर. दैट इज व्हाई फॉर दीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये ऐसे स्ट्रिप्स बनाए गए. सो दिस इज कॉल्ड एज लिटमस पेपर. वरना लिटमस जो ओरिजिनली होता है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली दिस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है. लिटमस होता है.
यहाँ पे सोल्यूशन की बात की है, लेकिन यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट समझा था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लिटमस के पेपर्स। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। राइट डाउन अनदर थिंग, नंबर टू, राइट डाउन नंबर टू। नेचुरल इंडिकेटर्स हेडिंग दी थी, उसके अंदर हमने नंबर वन लिटमस लिखा था। राइट डाउन द नंबर टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक भी क्या है, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। सो राइट डाउन टर्मरिक, राइट डाउन टर्मरिक, राइट डाउन टर्मरिक। अभी टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ टर्मरिक, सो इट इज येलो। ठीक है, लेकिन टर्मरिक जो है एसिड में उसका कलर क्या रहता है, एसिड में इट चेंजेस टू येलो। सो जस्ट उसके नीचे राइट डाउन, एसिड में इसका कलर येलो ही रहेगा। ठीक है, मतलब तुमने एसिड लिया और एसिड के अंदर टर्मरिक डाला है तो उसका कलर फिर भी क्या रहेगा, येलो रहेगा। दैट इज व्हाट यू मीन टू से, मतलब वहां से पता चलता है कि ये क्या एसिड है। बट अगर वही बेस में अगर टर्मरिक डाला तो इसका कलर थोड़ा सा क्या हो जाता है, दैट इज थोड़ा सा रेडिश हो जाता है। तो बेस के अंदर इसका कलर क्या होगा, दैट इज रेड। तो जस्ट राइट डाउन, एसिड में वो येलो ही रहता है, एसिड डैश येलो, एंड बेस में इट चेंजेस टू बेसिकली रेड, बेस डैश रेड, ऐसे लिख दो। बेस डैश रेड, रेड ब्राउनिश रेड हो जाता है वो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, देखो यहाँ पे लिखा है रेड कैबेज लीव्स। नंबर थ्री, राइट डाउन रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स। ठीक है, अब रेड कैबेज लीव्स का एसिड में क्या हो जाता है, राइट डाउन एसिड में, एसिड डैश रेड और पिंक, रेड और पिंक कलर में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रेडिश या पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर रेड कैबेज लीव्स को हमने अगर इसमें डाल दिया, दैट इज इन एसिडिक सोल्यूशन, तो रेड कैबेज लीव्स का कलर क्या हो जाता है, दैट इज थोड़ा और रेड हो जाता है, या फिर पिंक कलर का हो जाता है, या फिर रेड ही रह जाता है। ठीक है, सेम कलर इट में, तो इट इज रेड या फिर पिंक कलर का हो जाता है। एंड बेस में इसका कलर क्या चेंज हो जाता है, राइट डाउन बेस में इसका कलर चेंज होगा, दैट इज इन ब्लू, ग्रीन या फिर येलो, ब्लू, ग्रीन या फिर येलो में चेंज होता है। ठीक है, जैसे राइट डाउन ब्लू, ब्लू ग्रीन या फिर येलो, उसके कलर इसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट कितना हुआ आई गेस, नंबर थ्री। सो राइट डाउन नंबर फोर, लास्ट वन, राइट डाउन यहाँ पे जैसे लिखा है कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनिया, यहाँ पे लिखा है। राइट डाउन नंबर फोर, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium. Write this one, please. Colored petals of hydrangea, petunia, and geranium. Geranium. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। मैंने यहाँ पे तुम्हें अभी फिलहाल पहले सबसे पहली चीज क्या सिखाया, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ा है हमने। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो नेचुरली हमें मिलते हैं। ठीक है, इनको ऐसा कुछ केमिकली बनाना नहीं पड़ता है। सो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, जैसे देख सकते हो कि फ्लावर्स के कुछ लीव्स है। हाँ अच्छा, ये जो इसका जो कलर बदलता है इसका हर एक का अलग अलग है। ठीक है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यूपीएससी इसके ऊपर सवाल नहीं पूछेगा। अब तक तो नहीं पूछा इतने सालों से, तो अभी भी नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट इट। पूछा तो शायद रेड कैबेज का पूछ सकता है या टर्मरिक का पूछ सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, ये हर एक लीव्स का नहीं पूछेगा अलग अलग से। बट ये याद रहने दो कि चार अलग अलग इंडिकेटर्स जो नेचुरल है वो कौन से थे, तो एक तो लिटमस है, दूसरा रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक एक था, एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम। ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये हमने नेचुरल इंडिकेटर्स इसमें पढ़ा है।
ठीक है। अ, तो यूपीएससी यही पूछेगा कि भाई चार नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से है, तो ये चार नेचुरल इंडिकेटर्स को प्लीज याद रखना। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर पार्ट विच इज गोइंग टू बी, इसमें है या नहीं है, ओके, अच्छा इसमें नहीं। सो नाउ राइट डाउन अनदर हेडिंग, गिव अनदर हेडिंग जिसमें राइट डाउन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, राइट डाउन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, राइट डाउन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, राइट डाउन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। उसके नीचे और एक स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन, उसके नीचे प्लीज राइट डाउन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, they are also called as they are also called as synthetic indicators, they are also called as synthetic indicators, they are also called as synthetic indicators, ठीक है, they are also called as synthetic indicators। अब अब जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था, जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो था क्या, तो दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था दैट वाज बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी सिंथेटिक। नेचुरल जो था मैंने बोला था वो नेचुरली हमें नेचर में मिल रहा था, बट सिंथेटिक जो है तो वो ऑब्वियसली कहाँ पे बनाएंगे हम, तो ये लैब में बनता है। ठीक है, ये इन्होंने बनाया लैब में बेसिकली साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली ये भी क्या इंडिकेटर्स है, मतलब ये इंडिकेट करेगा कि कोई सोल्यूशन एसिड है या बेस है, दैट इज व्हाट बेसिकली इट विल बी डूइंग। तो वही हम यहाँ पे जानेंगे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स में ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं। तो राइट डाउन नंबर वन, number one, देखो number one is going to be methyl orange, write down methyl orange, number one is write down methyl orange, ठीक है। तो ये मिथाइल ऑरेंज है, ओरिजिनली अगर हम इसका कलर देखेंगे तो इसका कलर क्या होता है, तो ये ऑरेंज इन कलर, ठीक है। तो राइट डाउन ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, ओरिजिनली इट इज ऑरेंज इन कलर, ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। इसका एसिड में लिख दो, एसिड में ये क्या हो जाता है, ठीक है। सो वंस यू बेसिकली पुट इन एसिड, इसका मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है, ऑरेंज का कलर क्या होता है, ये रेड हो जाता है। तो ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, तो बेस में ये येलो कलर का हो जाता है। तो इसके शेड क्या हो जाता है, बेस में थोड़ा सा हल्का है, लेस हार्मफुल, तो ऑरेंज का ये येलो हो जाता है। एसिड इज समथिंग विच इज हार्मफुल, तो ऑरेंज का रेड हो जाता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज गोइंग टू बी फेनोल्फथालीन, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी फेनोल्फथालीन, गोइंग टू बी फेनोल्फथालीन। स्पेलिंग एक बार ढंग से देख लेना, फेनोल्फथालीन, सॉरी यहाँ पे एल के बाद ई है, ठीक है, फेनोल्फथालीन। ठीक है, अब फेनोल्फथालीन जो होता है, ये एक बार यहाँ पे दिखाई देता है, एक मिनट। अगर फेनोल्फथालीन देखोगे तो ओरिजिनली जो इसका कलर होता है ये ऐसे होता है, कलरलेस है। ठीक है, इट इज बेसिकली कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, नॉर्मल पानी के जैसे दिखता है, ठीक है। और इसमें जैसे ही एसिड डालोगे तो ये फिर भी कलरलेस ही रहेगा, बट जैसे ही तुम इसमें क्या डालोगे, बेस डालोगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, कलरलेस है। 4 to 7 के आसपास इंडिकेटर अगर डाल रहे हो तो एसिड अगर डाल रहे हो तो कलरलेस है। 8 से 10, 8 से 10 के आसपास अगर जब जा रहा है, जब जैसे बेस इसमें डाला जा रहा है तो ये पिंक कलर का होता है।
ठीक है, तो इट बेसिकली कन्वर्ट्स इनटू पिंक। यहाँ पे देख सकते हो एसिड, एंड यहाँ पे बेसिकली बेस में वो पिंक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, so that is basically what are this is, that is phenolphthalein. So just write down originally colorless, ठीक है, एंड एसिड में डालोगे तो क्या होता है उसका, फिर भी कलरलेस रहेगा, एंड बेस में अगर डालोगे तो इट बिकम्स पिंक। जस्ट राइट दिस डाउन। बेस में पिंक हो जाता है। ठीक है, सो दिस वर द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स दैट वी हैव टू बेसिकली स्टडी। ठीक है, पहला हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा है, फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पढ़ा है। ठीक है, अब ये दोनों भी चीजें वो कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हमें पता चलती है। बट इसके अलावा देयर इज अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिसको बोला जाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, राइट डाउन नंबर 3 अंडर दिस इंडिकेटर्स, राइट डाउन। सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर लिखा है, नंबर 2 पे हमने लिखा था सिंथेटिक इंडिकेटर या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, एंड नंबर 3 is now going to be all factory indicators. Write down this number 3, all factory indicators, all factory indicators। ठीक है, अब ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये बेसिकली बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है ऑन द बेसिस ऑफ द ओडर। ठीक है, ये किसके ऊपर बताता है हमें, तो ये बताता है ऑन द बेसिस ऑफ ओडर, कि उसका जो स्मेल है तो कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एसिड और बेस। ठीक है, ये उस बेसिस पे हमें यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, सो राइट डाउन substances whose characteristic odor changes, substances whose characteristic odor changes or vanishes, substances whose characteristic odor changes or vanishes when mixed with acidic or basic solution, when mixed with acidic or basic solution, when mixed with acidic or basic solutions। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ चेंजेस है जो स्मेल के हिसाब से हमें पता चलते हैं। अब इसके अंदर कौन से, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर उसमें फ्लावर के पेटल्स थे, टर्मरिक था, ये वो था। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन पढ़ा है। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में ऐसे कौन से है, तो उसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी इज गोइंग टू बी, तुम्हारे लिए होगा, दैट इज गोइंग टू बी अनियन। कांदा जो हम खाते हैं घर में, अनियन, सो दैट अनियन इज बेसिकली व्हाट, तो दैट इज इट इज अ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है, सो अनियन का तुम्हें पता है स्पेसिफिक स्मेल होता है। ठीक है, बट इसके रेस्पेक्ट में हम समझेंगे, ठीक है, कि एसिड में इसका स्मेल कैसे बदलता है, एंड देन बेस में इसका स्मेल कैसे बदलता है, इसके बारे में हम एक बार देखेंगे। तो एसिड में इसका होता क्या है, दैट इज एसिड में इसका स्मेल रिमेन्स द सेम। ठीक है, स्मेल रिमेन्स द सेम, बट जस्ट स्मेल रिमेन्स द सेम, लेकिन बेस में इसका ओडर जो होता है ना, वो वैनिशेस। तो जस्ट राइट डाउन ओडर वैनिशेस, बेस में इसका ऑर्डर वैनिश होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने अगर कांदा को डाल दिया, ठीक है, अनियन को अगर हमने रख दिया है, तो व्हाट हैपेंस इज ऑर्डर वैनिशेस ऑफ दिस अनियन। अनियन का अगर ऑर्डर वैनिश हो रहा है, मतलब वो जो भी था सोल्यूशन वो क्या है, दैट इज इट इज अ बेस। एंड इफ द अनियन इज kept in an acid and if the smell still comes, then it basically means that the solution is acid। ठीक है, as simple as that। ठीक है, नंबर 2 that we are going to study is basically vanilla extract, vanilla extract।
ठीक है, वैनिला एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे भी सेम रहेगा, द सेम थिंग ओवर हियर एज वेल। ठीक है, स्मेल रिमेन्स द सेम इन एसिड एंड बेस में ओडर वैनिशेस। एंड नंबर 3 दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बेसिकली द फ्लो ऑयल। एंड इसके अंदर भी इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, के अंदर भी इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। तो जस्ट राइट दिस ऑन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में। ये तीन चीजें याद रखना ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स में, वन इज अनियन, सेकंड इज वैनिला एक्सट्रैक्ट एंड थर्ड इज फ्लो ऑयल। ठीक है, इज दिस फाइन एवरीवन? आई होप ये सब समझ रहा होगा। ठीक है, ओके, नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी वाइज तो यहाँ पे बीच में कुछ अलग चीज है, जैसे कि यहाँ पे देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शंस, दैट इज एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स एंड एसिड एंड बेस रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये काफी ज्यादा थोड़ा केमिस्ट्री केमिस्ट्री का जो वाइब होता है ना वो सब देता है, काफी सारे रिएक्शंस एंड एवरीथिंग इज देयर। मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड्स हमने पहले भी ये जिस तरीके से पढ़ा था उसी तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फॉर टुडे, since it is a very first lecture for you guys, so I'll be skipping this part for today. इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, और ये सब जितना भी दिख रहा है ना ये बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस बैच हैज ऑलरेडी स्टडीड दिस। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, दिखना बड़ा बड़ा दिखता है इसमें ये सब। ठीक है, इट्स नॉट दैट टफ, तो ये हम समझेंगे आराम से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई जस्ट कवर द इजी इजी पार्ट सो दैट इट इज मोटिवेटिंग फॉर यू टू स्टडी केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे इसके बाद वाला पार्ट जो होगा। ठीक है, नाउ वी आर कवर्ड द इंडिकेटर्स पार्ट। आई होप एवरीवन नोज वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट रिवाइज इट ऑल। ठीक है, एक तो होता है नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, फिर दूसरी जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, या फिर उसी को सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था टर्मरिक होता है, लिटमस होता है, पेटूनिया, हाइड्रेंशिया, जेरेनियम, ये इसके पेटल्स होते हैं, या फिर रेड कैबेज लीव्स होता है नेचुरल में। आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज होता है और फेनोक्सिलिन होता है जो लैब में बनाया होता है। एंड तीसरा जो होता है जो ओडर के बेसिस पे होता है वो होता है हमारा ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ठीक है, जिसमें हमने अनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट एंड फ्लो ऑयल, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, इंडिकेटर्स वाला पार्ट वी आर डन। वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाट एसिड एंड बेस इज, एसिड का टेस्ट कैसे होता है वो भी हमने देखा है, एसिड के अंदर कौन से टाइप ऑफ आयन्स होते हैं, बेस के अंदर कौन से टाइप ऑफ आयन्स होते हैं, ये सब भी हमने बेसिकली कवर कर लिया है। Now, next thing that we'll be moving towards is going to be this. Uh, this basically, it is going to be, sorry, universal indicators के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, so this strip that you basically see is basically a strip which is called as universal indicator। अगर अच्छे से और दिखाओ तो ये होता है यहाँ पे universal indicator की strip। ठीक है, तो व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर इज कि हमने देखा है कि हमने अलग अलग इंडिकेटर्स, वो भले नेचुरल हो या फिर वो आर्टिफिशियल हो या फिर ऑल्फैक्टरी हो, ये सब चीज में हमने कुछ चीजें देखी थी जिसमें वो कलर ग्रीन में चेंज हो रहा है, कभी ब्लू में चेंज हो रहा है, कभी रेड में हो रहा है, कभी येलो रहता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग कलर्स दे रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे साइंटिस्ट ने मिलजुल कर यहाँ पे एक सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रिप बना दी जिसपे ये सारे कलर्स उन्होंने रख दिए। दिस इज बेसिकली शेड ऑफ कलर्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर कलर लैंड हो रहा है तो हमने देखा था कि इसका ये कुछ ना कुछ तो एक एसिड की तरफ जा रहा है। ठीक है, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया एंड रेड तक जा रहा है, मतलब इट इज अ बिट एसिडिक। और वहीं पे हमने जब ग्रीन कलर थोड़ा ब्लू कलर की तरफ जाते हुए देख रहे थे तो बेसिकली इट वाज बेसिक इन नेचर। ये सब चीजों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं समझा था। वही कई साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर यहाँ पे ये स्ट्रिप बना दी है। ठीक है, फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रिप पे ये जितने भी हमने सब्सटेंसेस पढ़े इनको स्ट्रिप पे डाल के यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रिप इज वेरी इजी। ये तुमने तुम्हारे अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 8 9 10th में।
जब किसी चीज का पीएच बोला जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय पीएच, ठीक है। अब यहाँ पे पीएच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे समझो, ठीक है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called as pH scale. P in this pH stands for potens in Germany, ठीक है। यहाँ पे समझो इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज पोटेंस। ये P का मतलब होता है पोटेंस, एंड पोटेंस का मतलब जर्मन में क्या होता है, दैट इज पावर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितनी पावर है उसकी, ठीक है। एंड ये H का मतलब क्या होता है, दैट इज दिस H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस की पावर कितनी है किसी भी सोल्यूशन में, ये H प्लस आयन की पावर, H की पावर कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये बेसिकली ये स्ट्रिप पे हमें पता चलता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब ही होता है बेसिक, ठीक है। बेस को अल्कलाइन भी बोला जाता है कभी कभी, ये याद रखना। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion, हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है क्योंकि H बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन है उसी को हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है, ये चीज याद रखना। लोअर इज द पीएच वैल्यू बेसिकली, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। सो ये एक तो पहली बात, तो ये एक चीज क्या हमने अभी यहाँ पे जो पढ़ी, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया क्यों है, दैट इज टू अंडरस्टैंड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है कोई भी एसिड, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इसका यूज क्या है, we can do this by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicators. First of all, universal indicator is a mixture of several indicators. प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना क्योंकि यूपीएससी ने एग्जैक्ट ये सेम लाइन यूज करके क्वेश्चन बनाया है पीवाईक्यू, जो कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन, ठीक है। क्या करता है, ये अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के, ये भी चीज याद रखना। पीएच का, पी का मतलब क्या है इन दिस पीएच, पोटेंस इन जर्मनी, ठीक है। पीएच की स्केल है, नंबरिंग कितने 0 से लेके 14 तक होगा, प्लीज ये चीज याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे रखना। देखो, तो 0 से लेके 14 तक है, लेकिन इसके बीच में एग्जैक्टली बीच में क्या होता है, कौन सा नंबर आता है, दैट इज 7। तो जब किसी चीज का अगर पीएच 7 बोला जाता है तो वो कौन सा सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द वाटर दैट वी ड्रिंक, ठीक है। जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, वो जो पानी होता है उसका पीएच यूजुअली क्या होता है, 7 या फिर 7 के आसपास होता है, ठीक है। 7 से नीचे अगर किसी का पीएच है, मतलब 0 से लेके 7 तक, 7 से नीचे मतलब 0 से लेके 7 तक, अगर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बीच में 7 है न्यूट्रल पे, ठीक है। तो 7 से नीचे जो भी चीज रहेगी इसका क्या होता है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी का पीएच अगर 6 है और किसी का अगर पीएच 2 है, तो ये 2 पीएच और 6 पीएच में से किसका एसिड ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, पीएच 2 और पीएच 6। टू। हाँ, पीएच 2 का एसिडिटी ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। द सेम वे 7 से लेके 14 तक हम जब जाते हैं, जब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जिसका पीएच 14 होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। जिसका पीएच लेट से 8 होगा वो कंपैरेटिवली या फिर बहुत ज्यादा हद तक लेस बेसिक है, एंड इट इज मूविंग मोर टुवर्ड्स व्हाट, एसिडिक नेचर, ठीक है। आई होप ये चीज समझी होंगी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ किसी चीज का अगर पीएच इज 9, तो उसके अंदर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दोनों में से किसके कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस या OH माइनस। किसी का पीएच जब 9 है तो किसके कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस सोल्यूशन में, H प्लस या OH माइनस। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, अगर पीएच 9 बोला जा रहा है तो बेसिकली वो क्या है, मतलब उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, और बेस में कौन सा आयन सबसे ज्यादा होता है, दैट इज OH माइनस ज्यादा होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है इसमें OH माइनस की जो आयन है वो सबसे ज्यादा होंगे, जिसका पीएच 9 होता है टेक्निकली, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी का पीएच 5 है तो उसमें किस चीज की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, H प्लस का या OH माइनस का। ठीक है, तो उसमें H प्लस का कंसेंट्रेशन बेसिकली ज्यादा होगा क्योंकि एसिडिक बेसिकली पीएच 5 मतलब वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। एंड जो चीज एसिडिक होती है उसका, उसके अंदर कौन से आयन होते हैं, तो दैट इज H प्लस आयन उसमें भर भर के होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट अ यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली इज। यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ इस तरीके से दिखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड द बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड द OH माइनस आयंस प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली।
ठीक है. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then this produce different amounts of hydrogen ions. ठीक है. बस बड़ी बड़ी बातें ये, चलो सिंपली अंडरस्टैंडिंग. एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है. एंड बेस क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब लिख लो, राइट दिस डाउन. मैं जो जो बोलूंगा इसमें से लिखिए. राइट डाउन. गिव अ हेडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. गिव अ हेडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. गिव अ हेडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. Write down, it is a mixture of several indicators. It is a mixture of several indicators. It is a mixture of several indicators. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट डाउन. इट शोज, यहाँ पे लिखा है देखो ये स्टेटमेंट. इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट concentration of hydrogen ions in a solution. It shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट डाउन. It shows how strong a given acid or a base is. It shows how strong a given acid or a base is. It shows how strong a given acid or a base is. ठीक है. इट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेसिस, मतलब वो क्या बता रहा है? किसी भी सोल्यूशन का एक स्ट्रेंथ बता रहा है. एसिड या बेस का स्ट्रेंथ बता रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो. ठीक है. मतलब ये चीज तो पक्का है कि वो एसिड या बेस होगा, लेकिन एसिड या बेस में भी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना वीक एसिड है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर कितना वीक बेस है, ये चीज हमें इस बेसिकली स्केल से पता चलता है, पीएच के. ठीक है. राइट डाउन दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट. राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट डाउन. द P in the pH stands for potens in Germany. In German form. The P in pH stands for potens in German. Potens in German, meaning power. Meaning power. इसका मतलब क्या है? दैट इज पावर. पोटेंस का मतलब है पावर. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दो, राइट डाउन. जीरो, pH 0 ऐसे लिखो. pH 0 डैश वेरी एसिडिक. pH 0 डैश वेरी एसिडिक. एंड pH 14 डैश वेरी अल्कलाइन स्लैश बेसिक. यहाँ पे लिखा है जैसे pH 0 dash very acidic and pH 14 dash very alkaline slash base. Alkaline और base, it means the same thing. ठीक है. और एक लिखो, pH 7 is equal to neutral solution. 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 ठीक है. ठीक है. इज दिस फाइन पापा? किसी को कोई डाउट है इसमें? डज एनीवन हैव एनी डाउट? समझा है? Sir, no doubt. ओके, गुड.
ठीक है, तो अब हम समझेंगे यहाँ पे पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो सिंपल सिंपल टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। एंड माइंड यू, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही टॉपिक से पूछे जाते हैं कि यूपीएससी इज अ वेरी लाइक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन। वो ये समझने की कोशिश करता है ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे ये हेल्पफुल होगी एज ऑफिसर एज वेल व्हेन यू आर गोइंग टू बी लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी टुमारो बाय क्लियरिंग दिस एनडी एग्जामिनेशन। 3 साल का ट्रेनिंग, उसके बाद 1.5 साल का आईएमए का ट्रेनिंग, और उसके बाद जब तुम एक ऑफिसर बन जाते हो, तो यही सारी चीजें जो तुम पढ़ रहे हो बेसिकली किताबों में, ये तुम कहाँ अप्लाई कर सकते हो, यही चीज उनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने एसिड और बेस क्या है ये समझने की कोशिश की, उसके अलग अलग इंडिकेटर्स जानने की कोशिश की। तो सारे इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमने क्यूमुलेटिवली एक सबका एक इंडिकेटर बना जिसको हमने अभी पढ़ा, विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। बट ये सब चीजें जब हमें पता है कि एसिड है, वो बेस है, उसका ये पीएच है, वो पीएच है, ये सब कुछ समझने के बाद हम इस चीज का हमारे डे टू डे जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये यहाँ पे समझने की हम कोशिश करेंगे बेसिकली, ठीक है। बट बिफोर दैट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कुछ और चीज है, जैसे कि यहाँ पे ये जो टेबल बना, ठीक है, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। ओके, आई जस्ट डिक्टेट यू सम वैल्यूज, ठीक है, वो हमें लिखना है जैसे कि यहाँ पे दिखता है, ठीक है। यूपीएससी जो है ना काफी शातिर है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ने बोला है हमें, तो पूरा ही एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम यहाँ पे ये जो ये टेबल्स वगैरह जो दिखता है हम वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, एंड यूपीएससी एग्जैक्टली यही चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देता है और यही से पूछ लेता है। अब जैसे ये चीज है, काम हमारा है कि हमें ये सब चीजों को भरना है बेसिकली। यहाँ पे वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू नहीं है, ये सब चीजें लिखने का काम हमारा है, ठीक है। So I'll be just dictating you certain values of this. Please write it down. ठीक है, write down. Start writing. Number one. पहले लिख दो number one. Saliva before meal. Write down saliva before meal. Saliva before meal. इसका वैल्यू है 7.4। इसका वैल्यू है 7.4। अगर इसका वैल्यू 7.4 है मतलब ये क्या है, एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है? इसका It's पीएच इज base. 7.4, सो इट इज बेसिक। मतलब 7 से 14 के बीच में जो भी होगा वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमारा जो सलाइवा होता है खाना खाने से पहले, ठीक है, वो उसका पीएच क्या होता है, दैट इज 7.4। तो खाना खाने के बाद क्या लगता है, पीएच वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? हमारा सलाइवा का वैल्यू आफ्टर मील, व्हाट डू यू थिंक, सो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज मोर देन दिस और लेस देन दिस? एक अंदाजा लगाओ। हम जो खाना खाते हैं वो पूरा खाना एसिडिक होता है, बेसिक होता है? Acidic होता है. हाँ, वो काफी ज्यादा Will एसिडिक होता है हम decrease. जो खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नींबू भी पिया, तो नींबू इटसेल्फ इज एसिडिक। उसमें कौन सा एसिड होता है नींबू में? Citric acid. सिट्रिक एसिड होता है, हमने ये Citric सब acid. पढ़ा है। तो जब खाना भी खा रहे हो तो ये एसिडिक ही होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू लेस देन 7 होता है। और इसका वैल्यू स्पेसिफिकली आफ्टर मिल इट इज 5.8 के आसपास चले जाता है। तो ऑब्वियसली दिस इज एसिडिक नेचर। तो सलाइवा आफ्टर मील का वैल्यू पीएच इज 5.8। ठीक है, अभी हमने नींबू की बात की तो लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस अगर देखेंगे तो नींबू है, नींबू में हमने अभी देखा सिट्रस एसिड होता है। तो डेफिनेट है इसका वैल्यू जो होगा वो पीएच के 7 से नीचे होगा, 0 से 7 के बीच में होगा, क्योंकि एसिड इज समथिंग विच इज बिलो 7। तो इसका आंसर इज 2.2। तो राइट डाउन 2.2। ठीक है, ठीक है। ना देर इज कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। ठीक है, हम जो ये पानी, सॉरी, ये जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम जो पीते हैं, ठीक है, स्प्राइट, थम्स अप एंड ऑल, ये सब जो होता है उसमें भी कार्बोनिक एसिड होता है, उसके अंदर एक एसिड डाला जाता है। जब हम ढक्कन खोलते हैं तब आवाज आता है, तो दैट इज बेसिकली दिस। इसका पीएच होता है 6, तो ये एसिडिक होता है थोड़ा सा। लिक्विड वो बेसिक होता है क्योंकि उसमें सोडा होता है। ठीक है, कैरेट जूस जो होता है इसका होता है 5.6 से लेके 6.6 के आसपास। ठीक है, 5.6 से लेके 6.6 के आसपास होता है। तो राइट डाउन 5.6 से 6.6।
कॉफी का भी जो होता है वो होता है 4.8 से लेके 4.8 से लेके ये 5 के आसपास होता है। ठीक है, कॉफी। तो कॉफी भी हम जो पीते हैं तो कभी एसिडिटी हो जाती है तो कॉफी मत पिया करो, दूध भी मत पिया करो। दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड होने की वजह से इट इज बेसिकली एसिडिक। ठीक है, कॉफी भी एसिडिक होती है, 4.8 से लेके 5 के बीच में पीएच होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टोमेटो जूस। टोमेटो जूस भी होता है, ये भी एसिडिक ही होगा, 4.1 से लेके 4.6 के आसपास इसका पीएच है टेक्निकली। ठीक है, एंड देन टैप वाटर, जो हमारे नल में पानी आता है, ठीक है, इसका क्या होगा? तो इट इज गोइंग टू बी 7.5। इसका पीएच इज 7.5, टैप वाटर। ठीक है, आई होप ये सब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो यूपीएससी ने अब तक इसके ऊपर तो ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा है डायरेक्टली वैल्यूज के ऊपर। यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर द वैल्यूज, लेकिन ये याद रखना है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो पीएच विल बी मोर देन 7 या लेस देन 7, बस इतने चीज के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर वैल्यूज रट नहीं रहे हो, बस एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो कि सलाइवा बिफोर मील क्या होगा, एसिडिक या बेसिक है। तो यस, इट इज बेसिक। सलाइवा आफ्टर मील इज गोइंग टू बी एसिडिक। तो बस एक अंदाजा बनाना है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, एज सच यूपीएससी नेवर आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ वैल्यू, जिसके आगे भी कभी वैल्यूज नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे वैल्यूज खत्म नहीं होती, उसके बाद प्लीज कंटिन्यू राइटिंग दिस, राइट डाउन दिस। गैस्ट्रिक जूस, ये रह गया। राइट डाउन गैस्ट्रिक जूस का वैल्यू, इट इज पीएच इज 1.2। लेमन जूस का तुमने ऑलरेडी लिखा है तो वो मत लिखो, गैस्ट्रिक जूस लिखो, राइट डाउन। देन ऑल्सो राइट डाउन दिस प्योर ब्लड कॉमा, सॉरी, प्योर वाटर कॉमा ब्लड, हमारा जो खून है एंड प्योर वाटर भी जो है उसका भी वैल्यू कितना है? दैट इज 7.4। 7.4। 7.4। तो अगर हम, मैंने एक चीज अगर ये पूछी कि हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी इज मेड अप ऑफ एसिडिक कंसंट्रेशन और बेसिक कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी योर आंसर? एसिडिक। नो नो नो, हमारी बॉडी, ब्लड है यार, 7.4, सो इट हाँ इज तो मोर टुवर्ड्स दिस बेसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद प्लीज ऑल्सो राइट डाउन दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका पीएच इज 10। एंड देन लास्ट was सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच इज 14। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच इज 14। ठीक है, so these are certain kind of important such substances, common substances, जिसका तुम्हें पीएच थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, all right, now we'll be moving towards the other part, which is जो कि हम यहाँ पे पढ़े, that is importance of pH in everyday life। ठीक है, just give a heading this, write down importance of pH in everyday life, give an heading। ठीक है, लास्ट पार्ट है, जल्दी जल्दी करेंगे एंड देन विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखोगे तब समझेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें अभी समझो, सी द फर्स्ट थिंग ओवर हियर दैट से आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 से लेके 7.8। मतलब हमारी बॉडी बेसिक है, एसिडिक है? फिर से
Our body is basic or acidic? Our body is basically basic because it works in the range of 7 से लेके 7.8 और 7 से 7.8 मतलब it is basic in nature. So write this statement first. Write down number one, statement number one. Our body works within the pH range of 7 से लेके 7.8. ठीक है. कभी कभी हम ये चीज पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज में आता है एसिड रेन हो गया भाई, एसिड रेन. सो एसिड रेन है तो ऑब्वियसली ये एसिडिक होगा, तो इसका पीएच जो होगा 7 से नीचे का होगा. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू व्हेन एसिडिक रेन एक्चुअली हैपेंस? तो उसका पीएच वैल्यू इज व्हेन इट इज लेस देन 5.6. सो राइट डाउन acid rain, write down acid rain is when the pH of rainwater is less than 5.6. Acid rain is when the pH of rainwater is less than 5.6. Acid rain is when the pH of rainwater is less than 6. ठीक है. तो आई होप दो चीजें यहाँ पे अब तक समझी होगी जो एवरीडे लाइफ की इंपॉर्टेंट है. एक तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो कौन से पीएच रेंज में वर्क करती है, दैट इज फ्रॉम 7 से लेके 7.8, दैट इज इन बेसिक रेंज. नॉर्मल जब बारिश होती है तो वो नॉर्मल होती है, बट वेन एवर एसिड रेन हैपेंस, तो दैट रेन हैपेंस व्हेन द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 का पीएच उसका जब होता है. ठीक है. Next important thing that you're supposed to write from this is going to be the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. So write this down. Very important. ये भी क्वेश्चन दो बार पूछा है एनडीए के एग्जाम में. ठीक है. 2 times same question has been asked. Write this down please. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. ठीक है. प्लीज ऑल्सो राइट डाउन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला. उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो H2S H2SO. राइट डाउन H2SO4. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा है तो प्लीज कीप रिमेम्बर दिस. हम पीवाईक्यूज करेंगे तब इम्पोर्टेंट है. ठीक है. नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस बेसिकली. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच के रेस्पेक्ट में. ठीक है. अब हमारे स्टमक में जो होता है, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो दैट इज HCl. ठीक है. कभी बचपन में सुना होगा HCl. तो HCl जो होता है उसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे पेट में. बट ये क्यों होता है? व्हाई इज दिस hydrochloric acid in your stomach? That is specifically for the digestion of your food. So it helps in the digestion of food without harming the stomach. अभी स्टमक को हार्म क्यों नहीं करता? बिकॉज एक लाइनिंग होती है स्टमक के अराउंड विच इज कॉल्ड एज म्यूकस लाइनिंग, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को फ्रॉम द इनर साइड बाय दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, वो बात अलग. बट ड्यूरिंग इन डाइजेशन, जब डाइजेस्ट नहीं होता है फूड, जब हम बहुत खाना खा लेते हैं या फिर बहुत कम खाना होगा, तो ये स्टमक जो होता है, हम बोलते हैं ना इंडाइजेशन के टाइम पे, फिर क्या होता है? स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन. ठीक है. बहुत ज्यादा खाना खा ले तो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है एंड उसी की वजह से हमें क्या हो जाता है? दैट इज दिस एसिडिटी दैट वी टॉक अबाउट. ठीक है. टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एज एंटासिड. ठीक है. अब पेट में जब एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अगेंस्ट में कौन सी चीज होगी? तो उसके अगेंस्ट होगा बेस. ठीक है. तो उसके अगेंस्ट हमें लगेगा बेस. और ये बेस यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सम पीपल यूज बेसिस विच इज कॉल्ड एज व्हाट? एंटासिड.
तो जब एसिडिटी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, इनो। दैट इनो इन अ केमिकल टर्म्स इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटासिड। Such remedies have been suggested by you at the beginning of this chapter. This antacid neutralizes the excess acid. ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, यही HCl जो पेट में बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ये बेस। ठीक है, तो एसिड एंड बेस बेसिकली रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एंड ये जो इसमें एंटासिड में होता है उसका सबसे कॉमन एक एग्जांपल ऑफ एंटासिड इज बेसिकली magnesium hydroxide, which is milk of magnesia. It is what, a mild base which is often used for this purpose. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी अगर यूज कर दोगे तो पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर तो HCl के प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर दैट मैटर वी यूज व्हाट, दैट इज माइल्ड बेस यूज करते हैं हम, जिसका एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इसका पीएच कितना था ऊपर, यहाँ पे देखा था हमने, पीएच इज बेसिकली 10। ठीक है, सो ये होता है हमारा एक माइल्ड बेस जो कि हम यूज करते हैं to neutralize what, the excess acid which is there in our stomach. So write down, write this down. Next statement, write down. Antacids, antacids, यहाँ पे लिखा है antacids like, antacids like, antacids like magnesium hydroxide, antacids like magnesium hydroxide, bracket में write down MgOH, MgOH twice। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, उसी के आगे कॉमा करके राइट डाउन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, antacids like magnesium hydroxide MgOH twice, milk of magnesia, bracket close कर दो, राइट डाउन, which is a mild base, which is a mild base, which is a mild base, please underline this mild base, very important, यूपीएससी ने एक बार ये पूछा है, which is a mild base, is used, is used to neutralize the excess acid, and used to neutralize the excess acid caused during acidity in stomach, 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 caused during acidity in stomach। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा फंडा समझा होगा, वो यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। एसिडिटी पेट में हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, विच इज एंटा एसिड, और एंटा एसिड का एक एग्जांपल इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कभी कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है, बट ये जो इनो तुम पीते हो तो वो इनो एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज MgOH ट्वाइस, यही होता है वो इनो में, नथिंग एल्स, so दैट इज द केमिकल कंपाउंड विच इज यूज। ठीक है, सो लेट्स मूव। अब समझते टूथ डीके। ठीक है, जब दांत खराब हो जाता है हम बोलते हैं राइट, देन देयर इज अ कैविटी, देयर इज अ टूथ डीके। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब व्हेन द पीएच इन द माउथ इज लोअर देन 5.5। अब देखो ये पीएच 5.5, 5.5 से जब पीएच के जब लोअर होता है तब क्या होता है, दैट इज टूथ डीके। ठीक है, प्लीज अब इस चीज से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द वेरी फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड जहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज 5.6 पे क्या होता है, जब 5.6 से जब लेस होता है तब क्या होता है यहाँ पे, दैट इज एसिड रेन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जब 5.5 से लेस होगा तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज बेसिकली टूथ डीके। सो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। सो राइट दिस स्टेटमेंट, राइट डाउन, tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. Write down, tooth decay starts when the pH of the mouth is less than 5.5. ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें तुम्हें समझना जरूरी है, जैसे टूथ एनामल जो होता है दांतों में जो होता है, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट विच इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का, हमने समझा है इसको पहले भी। ठीक है, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, ये करोड़ भी नहीं होता है, बट ये जब तभी करोड़ होता है जब पीएच, माउथ का जो पीएच है वो लेस देन 5.5 होता है।
बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग. द बेस्ट way to prevent is to clean the mouth after eating food. Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. So ये statement लिखना बहुत ज्यादा important है. Write this down. Uh, Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. ये एक statement लिख दो. Write down this. Using toothpaste. इसलिए बोला जाता है खाने के बाद ब्रश किया करो, so that tooth decay ना हो. Please write this statement. Using toothpaste, which are generally basic. ठीक है, लास्ट फ्यू थिंग्स. ठीक है. अब ये भी एक डे टू डे लाइफ का एक फिनोमिना है जो कि हमने देखा होगा, हनी बी. अभी हनी बी क्या करता है, दैट इज इट इज बी स्टिंग. ठीक है. तो ये बी स्टिंग जब होता है तब तुमने देखा होगा यार कैसे होता है. लेट्स सी. बी स्टिंग देख लेते हैं, जो तो तुमने देखा ही होगा यार. ओके. अब बी स्टिंग होने के बाद ये क्या होता है, दिस इज हाउ इट बेसिकली समटाइम्स लुक्स लाइक. जब बी स्टिंग करता है, ठीक है, तो ये पूरा जो होता है रेडिश रेडिश हो जाता है. दिस इज हाउ इट यूजुअली लुक्स. एंड दिस पार्ट, दिस बी स्टिंग पार्ट इज बेसिकली, ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है. सो बी इज रिलीज व्हाट, दैट इज मेथनोइक एसिड. ठीक है. तो वो जलता है ना, तो दैट दैट बर्निंग सेंसेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ मेथनोइक एसिड. ठीक है. एंड बाय द वे मेथनोइक एसिड का कोई और एक नाम था. ठीक है, वो पता होगा तुम्हें, मैंने बताया मेथनोइक एसिड का कोई और नाम भी है. चलो उसके बारे में हम आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन बी स्टिंग जो होता है, वो एक एसिड रिलीज करता है हमारे अंदर, जो क्या करता है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. ठीक है. वही सेम चीज स्टिंगिंग ऑफ हेयर ऑफ नेटल लीव्स, दे आल्सो इंजेक्ट व्हाट, मेथनोइक एसिड. अब ये नेटल स्टिंग क्या होता है ना, यहाँ पे देखो ये ऐसे कुछ पत्ते दिखते हैं. ठीक है, ये ऐसे कुछ पत्ते होते हैं. चलो उसका मैं फोटो दिखा दूंगा तुम्हें. पर ठीक है, ये चीज याद रखना, बी स्टिंग होता है या फिर नेटल लीव्स का जब स्टिंग होता है, तब ये क्या रिलीज करता है, उसमें मेथेनोइक एसिड यूज स्टिंग, मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है. या फिर यही मेथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है. और इसी की वजह से हमारे बॉडी में पेन एंड इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. तब इसके अगेंस्ट में हम क्या यूज करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में माइल्ड बेस एज अ बेकिंग सोडा यहाँ पे हम उसके ऊपर लगा सकते हैं टू गिव रिलीफ टू इट. ठीक है. एक बार नेटल स्टिंग दिखा देता हूँ. तो यू कैन सी, ये ऐसे कुछ लीव्स दिखता है इसके. ठीक है. दिस इज हाउ द लीव्स लुक लाइक. इसके अगर लीव्स के कोने कोने अगर देखोगे तो दे आर सर्टन लिटिल बिट पॉइंटी पॉइंटी. ठीक है. पूरा हाथ ऐसे हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस नेटल लीव्स के स्टिंग्स की वजह से. सो अगेन दिस नेटल लीव्स जो होता है, ये भी जो इसका जो स्टिंग है, इसके थ्रू भी क्या रिलीज होता है, सेम थिंग, दैट इज मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड. तो बी स्टिंग हो, नेटल लीव्स का स्टिंग हो, ये दोनों के थ्रू फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड रिलीज किया जाता है. एंड इसको अगर ठीक करना है तो क्या लगाया जा सकता है, मतलब तुरंत घर पे अगर कुछ इसके ऊपर उपाय चाहिए, तो माइल्ड बेस जैसे कि एक बेकिंग सोडा इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो इससे पेन इरिटेशन थोड़ा कम हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे और एक चीज है. अब जैसे जंगलों में हम गए, और जंगलों में यहाँ पे क्या हो जाता है कि फॉर दैट मैटर ये नेटल स्टिंग हो जाता है. ठीक है. नाउ यू आर इन द जंगल एंड नेटल स्टिंग वहीं पे हो रहा है. तो वहां पे उसी चीज से बचने के लिए यहाँ पे एक प्लांट का लीफ है. ठीक है. लीफ ऑफ द डॉग प्लांट, दिस कैन बी यूज एज अ रेमेडी. So this is called as what a traditional remedy is rubbing the area with the leaf of a dog plant. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज अ डॉग प्लांट. ठीक है. यहाँ पे लिखा है. तो ये भी उसका एक रिलीफ का मैकेनिज्म बन जाता है. जैसे कि हम जंगलों में ही है और जंगलों में हमारे पास अभी बेकिंग सोडा नहीं है, तो तुरंत डॉग प्लांट भी ढूंढना है और डॉग प्लांट का लीफ यहाँ पे रगड़ना है उसके ऊपर. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली हाउ यू न्यूट्रलाइज दिस. ठीक है. सो राइट दिस डाउन, राइट दिस डाउन. बी स्टिंग, बी स्टिंग और bee sting or stinging hair of nettle leaves, bee sting or stinging hair of nettle leaves, यहाँ पे लिखा है bee sting or stinging hair of nettle leaves, inject methanoic acid, injects methanoic acid, injects
मेथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड स्लैश करके फॉर्मिक एसिड लिख दो, इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड स्लैश फॉर्मिक एसिड which causes burning pain, which causes burning pain, which causes burning pain, which causes burning pain. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूज ऑफ माइल्ड बेस, use of mild base like baking soda, use of mild base like baking soda, use of mild base like baking soda gives relief, use of mild base like baking soda gives relief, use of mild base like baking soda gives relief. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये भी लिख दो राइट नाउ, रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट ऑल्सो हेल्प्स, यहाँ पे रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट ऑल्सो हेल्प्स, rubbing the area with the leaf of dog plant also helps. ठीक है, so there you go. That is how basically we have completed the importance of pH in our everyday life as well. नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं एसिड्स एंड बेस के, ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज, तुम्हें एक तरीके से ऐसे टेबल बनाना है. ठीक है, ये तुरंत हो जाएगा, एक हार्डली 10-15 मिनट्स लेगा, एंड उसके बाद विल बी डूइंग क्वेश्चंस एंड विल बी डन फॉर द डे. सो जस्ट मेक अ टेबल लाइक दिस, एक बीच में एक लाइन बना दो. ठीक है, जस्ट मेक अ लाइन इन बिटवीन ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना दो, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग. यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर लिखो नेचुरल सोर्स और यहाँ पे लिख दो एसिड. तो हम पढ़ेंगे कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये लिखेंगे. ठीक है, वेरी इजी, ये ज्यादा यूजफुल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं. तो प्लीज राइट दिस डाउन, राइट ऑन नेचुरल सोर्स एंड एसिड. ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट वन विनेगर ही लिख दो, राइट डाउन ये विनेगर यहाँ पे. ठीक है, विनेगर, एंड उसके आगे यहाँ पे एसिड में लिख दो एसिटिक एसिड, उसके आगे यहाँ पे लिख दो एसिटिक एसिड. अभी एसिटिक एसिड का एक दूसरा नाम भी है जिसको क्या बोला जाता है, एथेनोइक एसिड. ठीक है, तो वहीं पे एसिटिक एसिड को स्लैश करके लिख दो एथेनोइक एसिड. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एसिटिक एसिड का नाम है इथेनोइक एसिड भी. और उसी के आगे ब्रैकेट में प्लीज ये फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे लिखा है ना CH3COOH, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है लेकिन वो बनाना नहीं है, बस ये लिख दो उसके आगे ब्रैकेट में CH3COOH. एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथेनोइक एसिड, प्लीज राइट दिस डाउन. ठीक है, ये लिख लिया CH3COOH. नेक्स्ट वन राइट डाउन ऑरेंज, ऑरेंज कॉमा लेमन भी लिख दो वहीं पे, ऑरेंज कॉमा लेमन, ये दोनों में होता है, ऑरेंज कॉमा लेमन. यहाँ पे कॉमा करके लेमन भी लिखी दो, ये क्या ही फर्क है. दोनों में क्या होता है, यहाँ पे लिख दो सिट्रिक एसिड, इसको सिट्रस फ्रूट्स भी बोला जाता है फॉर दैट मैटर, सिट्रिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट थिंग राइट डाउन टैमरिंड, टैमरिंड, यहाँ पे ग्रेप्स भी लिख दो, ग्रेप्स में भी होता है टैमरिंड ग्रेप्स. ठीक है, टैमरिंड ग्रेप्स एंड बनाना एज वेल, टैमरिंड ग्रेप्स एंड बनाना, टैमरिंड ग्रेप्स एंड बनाना, इन सब में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, इन सब में होता है टार्टरिक एसिड. टैमरिंड ग्रेप्स एंड बनाना, इसमें होता है टार्टरिक एसिड. देन नेक्स्ट वन राइट डाउन टोमेटो एंड स्पिनच, टोमेटो एंड स्पिनच, टोमेटो के साथ स्पिनच भी लिख दो, कभी पूछ ही लिया तो क्या पता भी. टोमेटो के साथ स्पिनच भी लिख दो, स्पिनच, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, लिख लिया टोमेटो स्पिनच, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड. नेक्स्ट वन नाउ राइट डाउन सोर मिल्क कर्ड, सोर मिल्क या फिर कर्ड, इसमें होता है लैक्टिक एसिड.
सार मिल्क कर्ड। जैसे वर्ड सार लिखा है तो सार तो टेस्ट एसिड का ही होता है, तो वहां से पता ही चल जाता है एसिड। लेकिन कौन सा एसिड होता है इसमें? लैक्टिक एसिड होता है। दही, कर्ड इज दही, उसमें लैक्टिक एसिड है। लेमन हमने ऑलरेडी लिखा है सिट्रिक एसिड होता है, तो वो लिखो मत। एंड स्टिंग एंड नेटल स्टिंग हमने देखा है, ठीक है। बी स्टिंग हो या फिर एंड स्टिंग हो, कभी कभी चींटी भी काट लेती है ना, सेम चीज है, मेथनोइक एसिड ही रिलीज करते हैं ये भी, ठीक है। तो ये सब तो लिखा हुआ है, लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है चलो, विल बी सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस, आई विल बी showing you some questions. ठीक है, ये दिख रहा है? इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके, Sir, now it's not. नाउ इट्स ओके, दिस इज ओके। इज इट विजिबल नाउ? Yeah. ओके, चलो बताओ। चलो आंसर्स क्या होंगे बताना अभी, ठीक है। Yes, okay. ओके, ठीक है, अभी दिख रहा Sir. है? ओके,
ठीक है, इसका आंसर बता। यहाँ पे लॉजिक So लगाना है it's थोड़ा। A. ठीक है, एक आंसर आ गया ए। और किसी का कुछ आंसर है? चलो ठीक है, तो इसका आंसर ए कैसे होगा? आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। ये जो यहाँ पे परसेंटेजेस और नंबर्स दी, उस पर फोकस मत करो। ठीक है, हमें पता है विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे लिखा है कार्बोनिक एसिड, इथेनॉल, प्रोपोनिक एसिड। हमने ये सब तो नहीं पढ़ा है, हमने एक ही चीज पढ़ी कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। अब वो कितने भी मात्रा में हो, ये 5 to 8% हो, 10, फर्क ही नहीं पड़ता, जब तक वो बाकी सब चीज गलत है एक्सेप्ट दिस वन थिंग। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, विनेगर में दैट इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सारे पढ़ के देखो कौन सा पूछा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड्स इज नॉट करेक्ट? बताओ। ऑप्शन सी। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टैबलेट। ओके, चलो एक बार पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है, इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक, इज दिस करेक्ट? हाँ, स्टमक में होता है एज अ गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? दैट इज विनेगर। एसिडिक एसिड का दूसरा नाम क्या था? Ethanoic व्हाट acid. वाज द अदर? इट वाज एथेनोइक एसिड, गुड। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड पेस्ट। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। किसमें प्रेजेंट था ऑक्सैलिक एसिड? टोमेटो Tomato and It is present spinach. in tomato and spinach. चलो good good good. And lemon and orange juices contain citric acid and ascorbic acid respectively. हाँ ठीक है, ascorbic acid भी उसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ दिस इज ट्रू। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसका आंसर बताओ। पीएचएस बताया, देखो मैंने तुम्हें लिख के दिए, एक बार रेफर करो नोट्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा? So it's D. डी, ओके। ठीक है, एक बार समझते, कॉफी का पीएच कितना था? 4 4.8 to 5. 4.8 के आसपास था। लेमन जूस? 2.2. 2.2। 2.2, तो ऑब्वियस सी बात है 2.2 कम है और ये ज्यादा है, तो ये तो उल्टा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन गया। तो ऐसा कुछ ढूंढना है जिसमें लेमन जूस पहले और कॉफी उसके बाद हो। यहाँ पे भी कॉफी पहले, लेमन जूस बाद में, बी भी ऑप्शन गया। लेमन जूस यहाँ पे, कॉफी यहाँ पे, खत्म। बस एक ही यहाँ जगह है, सॉरी, अच्छा सी ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन ब्लड का हमने देखा था, ब्लड का कितना था? 7.4। 7.4। 7.4, तो ऑब्वियसली 7.4 और कॉफी 4.8, तो ब्लड इसके बाद होना चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गया। ऑन दैट बेसिस हमारा यहाँ पे पक्का हो जाता डी। सबसे सिंपल चीज तो ये थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे आखिर में वो देखना है, तो ये सी और डी में ही था। एंड बाकी चीज हमें जैसे पता थी। तो मैंने जैसे बोला ना, यूपीएससी नंबर्स नहीं पूछेगा एग्जैक्टली पीएच के, लेकिन तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, एनालिसिस के लिए पता होना चाहिए, सो दैट ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी लगाना है, तो तुम्हें समझ आ जाए कि कौन सा पीएच आगे पीछे होगा। ठीक है, ओनली फॉर दैट मैटर। एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं पूछेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, गुड। इसका आंसर बताओ, इजी है। चलिए. ऑप्शन है। एंड ए, Correct. गुड। मेथनॉल एसिड, इसका दूसरा नाम क्या था? Formic एसिटिक acid. एसिड। हम्म। अच्छा, बी ऑप्शन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टार्टरिक एसिड। ये किस में प्रेजेंट था? Tamarind grapes टैमरिंड। and banana. टैमरिंड ग्रेप्स एंड बनाना एज वेल। चलो ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में था? हाइड्रोक्लोरिक किस में था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। भाई पेट में था, हमने देखा था, स्टमक के अंदर होता नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पे था बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड के थिक व्हाइट क्लाउड्स थे, येलो एंड व्हाइट क्लाउड्स, कौन से प्लेनेट पे थे वो? वीनस। Venus. वीनस, गुड गुड, जो भी है गुड। तो बताओ, यही क्वेश्चन आ गया। Option B. ठीक है, ऑप्शन बी दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो गुड।
बताओ किससे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा ये बचा है हमारा। अच्छा ये मैंने तुम्हें बताया नहीं। ठीक है। जहाँ पे हमने एसिड रेंज लिखा है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, वहां पे हमने एसिड रेंज लिखा है। व्हाट इज द पीएच जिसके नीचे एसिड रेंज होता है? 5.6, 5.4. less than 5.6. लेस देन 5.6। गुड, वहीं पे ये लाइन ऐड कर दो, ऑप्शन ए जो लिखा है इसमें, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन। ये भी उसका एक मेन रीजन होता है एसिड रेन होने का। ठीक है, ये लिख लो वहां पे प्लीज, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन। डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन सी एंड स्टिंग। ठीक है, और कौन से स्टिंग हमें या फिर कहाँ पे मिलता है ये? बी स्टिंग एंड नटल स्टिंग। बी स्टिंग एंड नटल लीव्स के जो स्टिंग होता है उसमें भी। मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड का दूसरा नाम? फॉर्मिक एसिड। Formic acid. गुड। बताओ। Methanoic acid. मेथनोइक एसिड, ये ऑप्शन। गुड। जस्ट अ सेकंड। बताओ इसका आंसर। ऑप्शन डी। Option ऑप्शन डी। चलो, तो रुचि एंड रुचि, राइट। उन दोनों ने तो डी पता है, किसी और का कुछ और आंसर है? नहीं, तो एवरीवन इज विद डी। चलो गुड। तो अब वही यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाए थे, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट्स लिखवाए देखो, और उसी के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, shows different colors at different concentration of hydrogen ions in solution, and it helps determine the strength of given acid or base। वही हमने देखा कितना स्ट्रॉन्ग ये एसिड है बेस हो सकता है, उसके बारे में बताओ। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन डी। ऑप्शन सॉरी, बी बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी विच इज माइल्ड बेस। माइंड बेस। ठीक है, गुड गुड गुड। इसका दूसरा नाम क्या था? एक्चुअल ऑफिशियल केमिकल नेम क्या है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गुड। एंड क्या बोलते हैं उसको? हाँ ठीक है, बराबर। एंड ये एक्चुअल में क्या है, किसका एग्जांपल है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटासिड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटासिड। गुड गुड। यही माइल्ड बेस का और एक कोई एग्जांपल बता सकते हो मुझे? अनदर एग्जांपल ऑफ अ माइल्ड बेस हमने पढ़ा है। एंड स्टिंग होने पे, बी स्टिंग होने पे लगाते हैं, baking हमने पढ़ा soda. था। बेकिंग सोडा। गुड। ये बताओ सिंपल। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगेन सेम क्वेश्चन, देखो बहुत बार पूछता है यूपीएससी ये क्वेश्चन। मेथनॉइक ऑप्शन ए। एसिड इज द आंसर ए। ठीक है, कई बार हमने देखा भी है। अगेन। Option D. ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गुड। litmus well known acid base indicator is derived from? Option B. ऑप्शन बी। B, lichens. Yes, and last question. ऑप्शन ए। ऑप्शन है। ठीक है, एक्सेस एसिडिटी हो जाती है माउथ के अंदर, उसका पीएच क्या होता है टूथ डीके का? बताओ।
less than 5.5, लेस देन 5.5, ठीक है, याद रखना। और एसिड रेन का क्या था? less than 5.6, less than गुड। 5.6. तो टूथपेस्ट लगाते क्यों है? दैट इज इट प्रिवेंट्स टूथ डीके बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड। ठीक है, चलो, गुड देन। कोई डाउट्स है? एनी डाउट्स यू गाइस हैव? नो डाउट्स? No, sir. ऑल गुड? Yes. अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। बाकी सब लोग भी प्लीज डू आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू let me know if you guys really know something or not, and please focus on the lecture so that ये PYQs कर तक भी आसानी हो। And PYQs, you are already seeing what kind of questions UPSC is actually asking। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस है। चैप्टर वाज आल्सो क्वाइट इजी। ठीक है, चैप्टर अब तक खत्म नहीं हुआ, टॉपिक्स उस चैप्टर के कुछ खत्म हुए। इन द नेक्स्ट लेक्चर विच इज प्रोबेबली ऑन थर्सडे, तो तब हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, एंड उसके बाद जो भी हम रिएक्शंस थे मेटल एसिड्स एंड बेस के, दैट इज आल्सो समथिंग दैट विल बी बेसिकली क्लियर। ठीक है, वी आर डन फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। Thank you, sir. थैंक यू।